Hello students, today we will start with exercise 3.3. In this exercise we will learn how to read a bar graph and how to draw a bar graph and double bar graph. Now our first question is use the bar graph to answer the following question. Now this is a bar graph given in the question. In this bar graph, this horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis. You can see on the horizontal lines means x-axis you are given some pet animals like dogs, cats, rabbits, hamsters and others, and on the y-axis you are given number of students. Now this is the important part in the bar graph. 1 unit is equal to 2 students. What does it mean? It means this is called 1 unit. It means you have taken this 1 unit as equal to 2 students. 2 students, 2 से 4, again 2 students, 4 to 6, again 2 students. Means 1 unit is equal to 2 students you are taking. Now, dogs are liked by 8 students, you can see. Cats are liked by 10 students. Likewise, rabbits are liked by 2 students. Hamsters are liked by, अब आप देखिए ये आपका 4 and 6 के बीच में आ रहा है तो 5, तो इसका मतलब 5 students like the hamsters. And other pet animals are liked by how many students? You can see this will line come to here to 3 students like the other pet as pet. Now first question is which is the most popular pet? तो आप देख सकते हैं यू कैन सी कि कैट जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. कैट इज़ लाइक बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. देयरफॉर कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? डॉग यू कैन सी कि आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं. 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट. नाउ question number 2, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years. Now on x-axis you are given years and on the y-axis you are given number of books sold by a bookstore. Now 1989 में लगभग you are given आपका यहाँ तक आ रहा है एंड यू कैन सी आपका ये कहाँ तक आ रहा है, ये 100 है, ये 120 है, मतलब दिस 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 100 बुक्स. मीन्स 100 है तो ये यू कैन सी कि आपके ये जो है ग्राफ में 10 लाइंस पार्ट्स के बीच में डिवाइड होता है आपका. तो ये फर्स्ट आपका 100 है तो नेक्स्ट लाइन 110, फिर 120, 130, 140 एंड दिस मिडल लाइन यू कैन सी 150 आएगा आपका यहाँ पे, 160, 170, 180, 190 एंड 200. तो आप उसे देख सकते हैं कि 1989 में अबाउट आपका 180 यूज़ हो रहा है. 1990 में आपका अराउंड 490 तक आ रहा है. देयरफॉर नाउ यू कैन आंसर कि 1989 में हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड? अबाउट 180. 1990 में 490 एंड 1990 में अराउंड 295 आपकी सेल हुई है. इन विच ईयर वर द बुक्स 475 सोल्ड एंड इन विच ईयर 225 बुक्स सोल्ड? नाउ 475 यू कैन से आपका लगभग ये आ रहा है 400 के 500 के बीच में आएगा. 475 अराउंड आपका 1990 में आ रहा है एंड 225 यू कैन से आपका 225 अराउंड यहाँ पड़ेगा क्योंकि ये मिडल में आपका 250 आएगा तो 225 आपका 92 के आसपास पड़ेगा. इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड? नाउ 250 बुक्स हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1992 में आपकी सेल हो रही हैं और एक साल और है आपका कि 1989 में भी 89 में भी आपकी लेस देन 200 बुक्स सेल हो रही हैं. नाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ you would estimate the number of books sold in 1989? This I have just explained to you कि since 1 unit आपकी जो है वो 100 बुक्स के बराबर है. Now this is 100 बुक्स के बराबर है. Therefore we can estimate the number of books sold in 1989 is about 180 because आपका ये 100 के बीच में डिवाइड है तो आपका 110, 120. I have already explained it to you. Now question number 3. In this question you are given this information, number of children and the class. Means
फिफ्थ क्लास में आपके पास यू हैव चिल्ड्रन 135, सिक्स क्लास में 120 चिल्ड्रन है, सेवन्थ में 95, एट्थ में 100, नाइन्थ में 90 एंड टेंथ में 80 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ. बार ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले ये स्केल चूज़ करना पड़ता है. तो यू कैन सी आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज़ 80 एंड लार्जेस्ट इज़ 135. आप 10 का के बराबर लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक दिस इज़ 0, 10, 20, 30. 1 unit I have taken as equal to 10 students. On y-axis number of children लिया है and these are the classes. Now fifth class में we have 135 students and 135 will lie between 130 and 140. तो आपकी ये जो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाती है ऐसे फॉर्म हो जाएगी. Now in sixth class we have 120 students. सिक्स क्लास में आपके 120 स्टूडेंट्स हैं तो आपका यहाँ तक आ गया. नेक्स्ट आपका 7th में 95 है तो 95 विल फॉल बिटवीन 90 एंड 100 एंड ये लाइन आपकी यहाँ तक आ जाएगी. लाइकवाइज इन द 8th क्लास 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 तक आपका ये आ गया है एंड 9th क्लास में आपका 90 है एंड इन द 10th क्लास likewise you can draw this bar graph. Now how would you choose a scale? 1 unit we have taken as 10 children. Now which class has the maximum number of children and the minimum? Now you can see आपकी जो यहाँ पे है देखिए सबसे ऊपर तक आपकी रेक्टेंगल जा रही है मीन्स इस क्लास में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये आपकी सबसे छोटी रेक्टेंगल बन रही है तो इसमें आपके पास 10th में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. So 5th class is the maximum number and 10th class is the minimum number. You can easily see from this bar graph. Now find the ratio of the students of class 6 to class 8. Class 6 में we have students 120 and 8 में 100 है तो आप 120 is to 100. You can write this ratio as fraction 120 upon 100. 0 से 0 कैंसिल होके आप इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. 2 6 था 2 5 था तो it will come out to be 6:5. Now question number 4. In this question the performance of students in first term and second term is given. Now you have to draw bar graph. A student has obtained how many marks in English? In first term he obtained 67 and in the second term he obtained 70 marks. Now in Hindi first term में 72 marks are obtained and in second term 65 marks obtained. Now how to draw the double bar graph? In the double bar graph one thing is important कि आपकी यहाँ पे हमें ये दो आपकी रेक्टेंगल्स पैरेलल बनती है इंग्लिश की. दिस फर्स्ट रेक्टेंगल is showing the marks obtained in the first term and the second rectangle is showing the marks in second term and we have explained it here, written it here कि आपने ये जो सिंपल आपकी रेक्टेंगल बनी हुई है दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म एंड द शेडेड रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड टर्म. ये आपका सेकेंड टर्म आपका रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ 67 एंड 70 तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट वी हैव टेकन एज 10 मार्क्स तो आपका 67 तक आपका यहाँ आ गया बिकॉज दिस इज 60 दिस इज 70 मीन्स आपका ये जो 10 आप में डिवाइडेड है दिस विल बी 61 62 63 64 65 66 67 68 69 एंड 70 तो आपने 67 तक ले लिया और सेकंड टर्म में उसी के साथ ज्वाइन आप करके आपने दूसरे टर्म के मार्क्स ले लेने हैं. दूसरे टर्म के मार्क्स आपके पास 70 हैं तो आप 70 मार्क्स तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे. लाइकवाइज इन हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस यू कैन ड्रॉ द डबल बार ग्राफ. नाउ क्वेश्चंस. इन विच सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है किस में इम्प्रूव की है. यू कैन सी कि आप सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ भी इम्प्रूव हो रही है बट दिस इज़ गोइंग डाउन, दिस इज़ गोइंग अप, दिस इज़ गोइंग अप, दिस इज़ गोइंग अगेन अप. बट किस में सबसे ज़्यादा हो रही है? इसमें यू कैन सी आपकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है इसमें आपकी ज़्यादा हो रही है बिकॉज डिफरेंस इज़ मोर हेयर.
and this is the subject math. Now, therefore, in maths the child has improved the most. In which subject is the improvement least? Least मतलब सबसे कम improvement किस में है? अब आप देख सकते हैं किसमें ये सबसे डिफरेंस जो है स्मॉलेस्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका ये बहुत कम डिफरेंस है, आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जस्ट। तो इन सोशल साइंस इम्प्रूवमेंट इज़ द लीस्ट। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन? यू कैन सी आपके सभी में परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो रही है, बट इन दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन एंड दिस इज हिंदी। therefore yes, the performance has gone down in Hindi. Now question number 5. Consider the data collected from a survey of a colony. आपके डाटा कलेक्ट किया गया है कि हाउ मैनी पर्सन्स लाइक द वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऑफ डिफरेंट गेम्स। कि फेवरेट स्पोर्ट अगर हम क्रिकेट ले तो हाउ मैनी पीपल आर वॉचिंग इट एंड हाउ मैनी आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, कि एक्चुअल में जो खेलते हैं और जो जस्ट वॉच करते हैं। तो ये आपके 620 पार्टिसिपेट करते हैं एंड 1240 वॉच करते हैं। लाइकवाइज बास्केटबॉल में 320 लोग पार्टिसिपेट करते हैं बट वॉच कितने लोग करते हैं? 470 लोग। लाइकवाइज स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स के बारे में भी दिया हुआ है। नाउ वी विल ड्रॉ अ बार ग्राफ, क्योंकि क्रिकेट के आपके 2 ड्रॉ करने हैं तो सिंपल रेक्टेंगल को वी विल टेक वॉचिंग एंड शेडेड को हम पार्टिसिपेटिंग में शो करेंगे। नाउ ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन फेवरेट स्पोर्ट्स एंड ऑन द वाई एक्सिस नंबर ऑफ पर्सन सर्वेड। नाउ क्रिकेट इज़ लाइक्ड बाय हाउ मैनी स्टूडेंट्स? 1240। तो 1240 तक आपने ले लिया है एंड हाउ मैनी पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट? 620। तो 620 तक आपने इसे ड्रॉ कर दिया है। Likewise, you have drawn all the others. Now, you can answer the question, what do you infer from the bar graph? Now, the bar graph shows the number of people who are watching and who are participating in different sports. कि आपका ये बार ग्राफ शो कर रहा है कि these favorite sports are watched by how many people and participated बाय हाउ मैनी पीपल, कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड कितने लोग जस्ट वॉच करते हैं। विच पार्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, कि विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। सो यू कैन सी आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका हाई कौन सी रेक्टेंगल जा रही है? क्रिकेट की जा रही है। तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, कि सबसे ज़्यादा जो है क्रिकेट पॉपुलर है। विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग? नाउ यू कैन सी कि वॉचिंग यहाँ ज़्यादा हो रहा है, पार्टिसिपेशन कम है। वॉचिंग ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन कम है। वॉचिंग अगेन इज़ मोर देन पार्टिसिपेशन, अगेन हेयर यू कैन सी। देयरफॉर वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग, कि लोग ज़्यादा खेलते कम हैं, जस्ट वॉच ज़्यादा करते हैं। देयरफॉर वॉचिंग द स्पोर्ट इज़ मोर प्रेफर्ड। थैंक यू।